हेलो गाइस, गुड इवनिंग। एक बार फिर से हाजिर हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक के साथ, और वी कैन से वन मेथडोलॉजी। तो व्हाट इज इट? दैट इज फर्स्ट पास यील्ड। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट पास यील्ड होता क्या है। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि रोड थ्रूपुट यील्ड क्या होता है और इसके बेनिफिट बेसिकली क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी। और बहुत से लोग इन्होंने इसको सुना भी नहीं होगा कि फर्स्ट पास यील्ड होता क्या है, क्योंकि ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफरेंट होता है। टर्मिनोलॉजी अलग अलग हो सकती है, बट द मेथड ऑफ कैलकुलेशन विल बी सेम। सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट कि इन इंडस्ट्री व्हाट आर अदर short terms which is being used in the worldwide. So let's start. So we will discuss here what are those short terms or other terms which is using in other industries worldwide. So first is SPR, बोले तो straight pass rate. Then second is pass rate itself. Third is yield rate itself. Then fourth is FTY, first time yield. So these are some other terms which is using in industry. It is getting very industry to industry, but the calculation method will be same. So let's discuss about this FTY in detail. So first we will discuss about key what is it. So first pass yield is a key performance indicator. It's a KPI that demonstrate the quality and efficiency of a manufacturing process. अगर आप FPY ट्रैक करते हैं तो आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी और इफिशियंसी को जज कर सकते हैं कि वो उसकी हेल्थ, प्रोसेस की हेल्थ का लेवल क्या है, कितना अच्छा चल रहा है या कितना बुरा चल रहा है। द मैन्युफैक्चरिंग इंटेलिजेंस figure especially tell you the proportion of finished unit that pass inspection during the product testing. ये साथ में जो इसकी टर्म्स है वो फिगर आउट करेगी कि आपको बताएगी कि जो प्रोडक्ट टेस्टिंग से पास होने वाली यूनिट का प्रपोर्शन क्या है। देन higher the FPY is more consistent and reliable your process. FPY जितना अच्छा होगा उतना आपका प्रोसेस रिलायबल होगा और कंसिस्टेंट होगा, इफिशियंसी अच्छी होगी। Then how to calculate it? If we talk about the calculation, so goods unit, basically the OK part divided by the total input which has been produced or feed it into that line or particular process. So that is called FPY, and we specifically we calculate it in percentage, so we can multiply by 100 as well. So here is, you can see the formula: goods part produced divided by total number of part started in production, यानी कि input of the part, or just then multiply by 100. So basically we calculate this FPY in percentage. Then एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो 10 के reams of paper be produced input on a line on a manufacturing process, and out of that only 9k is a goods. So what will be the yield? Yield will be the 90%, means 9,000 divided by 10,000 multiplied by 100. So the percentage will be, yield will be 90%. So this 90% is FPY, first pass yield. Then talk about rolled throughput yield. Rolled throughput yield is a basically the FPY was telling you for a particular process, but a rolled throughput yield will talk about the entire process. There can be a multiple sub process. So when we talk about FPY, so it means the yield rate of a sub process or a main process. But when we talk about rolled throughput yield, then multiplication of all sub process will be considered as rolled throughput yield. So here you can say what is the meaning. Basically, RTY is a process performance measure that provide insight into the cumulative effect of an entire process. जो भी मैंने बताया, FPY बेसिकली जब हम बात करेंगे तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस की बात करेंगे, बट जब हम RTY की बात करेंगे तो सेट ऑफ प्रोसेस और एंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करेंगे। उसमें सब असेंबली, टेस्टिंग, मशीनिंग, बाइंडिंग, टर्निंग, जो भी है, जितने भी प्रोसेस हैं आपके उस प्रोडक्ट को बनाने में यूज हो रहे हैं। RTY also called as throughput rate, overall manufacturing yield, total pass rate। जैसे हम FPY को मल्टीपल टर्मिनोलॉजी है,
जो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करती है, ऐसे ही आरटीवाई के केस में भी है, थ्रूपुट रेट, ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग यील्ड, टोटल पास रेट. RTY measure the yield of each several process steps and provide the probability that a unit will come through the process defect free. बेसिकली ये सवाल जो ये मेजर करता है वो यील्ड मेजर करता है ईच प्रोसेस स्टेप का, जो प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड कराता है एक यूनिट का डिफेक्ट प्रोसेस से डिफेक्ट फ्री पास होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो आपका आरटीवाई शो करता है. देन जितना आरटीवाई अच्छा होगा उतना आपका प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग एंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विल बी मोर कंसिस्टेंट एंड रिलायबल. सेम लाइक एज यील्ड एफपीवाई. बट एफपीवाई में क्या है, सब प्रोसेस के बारे में बेसिकली रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी दिखती है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट रोल्ड थ्रूपुट यील्ड, देन एंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो सब सेट ऑफ प्रोसेस हैं, जैसे सब सेट ऑफ प्रोसेस टर्निंग, बेंडिंग, सीएनसी एंड ऑल, तो ये सब सेट हो गए. बट व्हेन वी टॉक अबाउट की प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग का जो मल्टीप्लीकेशन है, वो बेसिकली आपका हो जाएगा रोल्ड थ्रूपुट यील्ड. तो हाउ टू कैलकुलेट इट, मल्टीप्लाई ऑफ ईच प्रोसेस एफपीवाई. तो ये बेसिकली आपका थ्रूपुट हो जाएगा. तो यहाँ पे कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल सब प्रोसेसेस है हमारे 5, तो उनका जो यील्ड है हमारा वो है 90% इंटू 91%, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, प्रोसेस 5. इनका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो हमारा आएगा 77.08. तो यहाँ मैंने पॉइंट्स के बाद नहीं लिया तो 77 दिखा रहा है, बट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आरटीवाई एक्यूरेट जो आएगा वो 77.08% आएगा. तो ये बेसिकली द मेथड ऑफ आरटीवाई. तो इन शॉर्ट अगर अब मैं बात करूं, ये मैंने इसमें थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. आरटीवाई और एफपीवाई बेसिकली सेम ऐसे है जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, अगर हम उसको मेजर नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे हाल कंडीशन क्या है, हमें फीवर है तो किस लेवल का है. अगर हम कंट्रोल ट्रैक नहीं करेंगे तो हम उसका प्रिकॉशन नहीं ले सकते, प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं ले सकते उसको इम्प्रूव करने के लिए. तो अगर हमें टेम्परेचर नहीं पता होगा तो हम हेल्थ का स्टेटस नहीं जान सकते कि अच्छी है या खराब है. तो सेम ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का अगर कोई इंडस्ट्री एफपीवाई और आरटीवाई ट्रैक नहीं करती है तो वहां पे प्रोबेबिलिटी है कि हाई रिजेक्शन होगा. अब हाई रिजेक्शन को कंट्रोल करने के लिए अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस हाई कर रही है तो इन दिस कॉम्पिटिटिव सिनेरियो ना, इट इज वेरी हार्ड टू सस्टेन इन अ मार्केट. अगर आप इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट में हाई प्राइस पे अपना प्रोडक्ट बेचेंगे तो बहुत टफ है कम्पिटिट कर पाना अदर कम्पिटिटर्स के साथ. जो ऐसी इंडस्ट्रीज जो अपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कंट्रोल नहीं करती, उनका बहुत ही टफ है सरवाइव कर पाना. तो अगर आपको मार्केट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिड्यूस करना है, देन यू हैव टू कंट्रोल एफपीवाई एंड आरटीवाई. देयर इज नो एनी चॉइस. तो इसका कैसे करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर, पता कैसे चलता है हमें, इसका बेनिफिट क्या है, वो मैं आपको एक थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा. तो उसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा इसके बारे में, आप कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं वो आपको मैं बताऊंगा. तो आप बने रहे, जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो. अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो ठोक दो लाइक, और अगर कुछ सजेशन है जो मेरे से स्किप हो गया इसको एक्सप्लेन करने में इन 2 टर्म्स को, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे शेयर कर सकते हैं. नॉलेज शेयरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा. तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय.